Assalamu alaikum, dear students. Here I am Tahira teaching you food science and nutrition. Under this subject, the first chapter is basic concepts in food and nutrition. And the subtopics of this chapter are basic terms used in study of food and nutrition. Next is relationship between food, nutrition and health. And the next subheading is functions of food. So today we discuss basic terms, various terms or basic terms that are used in study of food and nutrition. So first of all, we study what is nutrition. Nutrition defined as food at work in the body. It is the science of food, nutrients or other substances therein, their action, interaction and balance in relationship to health and disease. It is a process by which organisms ingests, digests, absorbs, transport and utilizes nutrients and dispose of their end products. Nutrition as science. It tells us about what happens to the food when it enters our body and thereafter. See, this nutrition ये एक फील्ड है जो हम स्टडी करते हैं जहाँ पे हम न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. वो हम कैसे सॉल्व करते हैं? We have to study about the food. Under this nutrition, it is a field of science where we study about the food. इट मीन्स कि जो न्यूट्रिशन है यहाँ पे आप फूड के बारे में स्टडी करते हैं उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है और अदर सब्सटेंसेस जो फूड में प्रेजेंट होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या एक्ट करते हैं उनका क्या इंटरेक्शन रहता है हमारी बॉडी के साथ और वो कैसे हमारे बॉडी में मेंटेन करते हैं बैलेंस बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज. इट मीन्स कि जब आप कोई फूड लेते हैं जब किसी पर्सन को कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होती है सो जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होती है उसमें हम कुछ न्यूट्रिएंट्स या एनहांस करते हैं या कुछ न्यूट्रिएंट्स हम उसमें ओमिट करते हैं एज पर द हेल्थ कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल. सो फूड जो है ये हमारे बॉडी में पहले हम इंजेस्ट करते हैं. जैसे आपने यहाँ पे देखा जो फूड है हम इंजेस्ट करते हैं फिर ये डाइजेस्ट हो जाता है. आफ्टर डाइजेस्ट की एब्जॉर्प्शन हो जाती है ट्रांसपोर्ट हो जाता है फिर मेटाबोलाइज हो जाती है. इट मीन्स कि जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिस्पोज हो जाते हैं. सो ये जो ये ऑल प्रोसेस है फ्रॉम इंजेक्शन टू द डिस्पोज ऑफ एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी जो भी इस बिटवीन जो ये साइकिल है इस प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं अंडर द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन. इट मीन्स जो न्यूट्रिशन है ये एक वाइड फील्ड है जहाँ पे आप स्टडी करते हो कि एक फूड के बारे में इसमें क्या क्या प्रेजेंट है उससे हमारे क्या बेनिफिट्स है हमारे हेल्थ के लिए क्या फंक्शन हमारी बॉडी में ये प्ले रोल करता है इसका क्या एक्शन रहता है हमारे हेल्थ पे और जब एक इंडिविजुअल सफर करता है किसी डिजीज से तो उसका इंटरेक्शन एट दैट टाइम व्हाट इज द इंटरेक्शन ऑफ द फूड विद द disease. And this nutrition, another definition of the nutrition is it tells us about what happens to the food when it enters our body and thereafter. So this definition also defines the same thing. It means that the food when it enters inside our body, what happens? सो ये जो ये सारा प्रोसेस है जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं फिर अंदर इनसाइड द बॉडी व्हाट हैपेंस टू द फूड ये सारा आप स्टडी करते हैं इस न्यूट्रिशन में. Isn't it? So nutrition जो है ये एक multidisciplinary है. It is correlated with other subjects. जब आप पढ़ते हैं nutrients के बारे में so it means कि जो nutrients के बारे में आप पढ़ते हैं वहाँ पे chemistry आ जाती है उनका action वो हम chemistry में reactions जैसे हम देखते हैं. So आपको chemistry की knowledge होनी चाहिए microbiology की knowledge होनी चाहिए biochemistry की knowledge होनी चाहिए. Then only you can understand the nutrition subject in a better way. Now the next term is the food. What is food? Anything solid or liquid which when swallowed, digested and assimilated in the body, that is food. So food जो है ये कुछ भी either you eat solid or liquid or which is swallowed
and digested and assimilated. It means absorbed and transported inside our body. That is food. Food. Another definition, it satisfies our hunger and provides energy for day-to-day living. It means जो food है, it gives us energy which is need for performing day-to-day activities. This is the another term. First was the nutrition, next was the food. So nutrition is different term and the food it is different. Now the next term is the health. Good health is important for great experience of living. Health affects not only individual but also community in which we live. In order to maintain the health, adequate food is very important. Then only you can achieve the good health goal. And the proper definition of health is it is a state of complete physical, mental, social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. So health health क्या होता है? हेल्थ जो है इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी. ये प्रॉपर डेफिनेशन है जो WHO ने दी है हमारे रिगार्डिंग हेल्थ. हेल्थ आप उसको इंसान को आप लेबल कर सकते हैं जो फिजिकली मेंटली एंड सोशली फिट होगा. जब ये तीनों डोमेन्स में व्हेन द इंडिविजुअल इज फिट इन ऑल थ्री डोमेन्स then you can say the person is healthy. And in order to achieve the healthy goal, you have to take adequate diet या adequate food. So जब आप proper balanced diet जिसमें सारे nutrients present होंगे, essential nutrients like carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, that is balanced diet. When you take the adequate food or balanced diet, then only you can achieve the good health goal. ठीक है. When a person is healthy, it means कि whole community is healthy. जब एक individual बीमार होता है, healthy नहीं होता है, ये affect करता है पूरे area या पूरे community को. Hope so isn't that healthy it affects us not only individual but also community in which we live. Hope you got my point. Now the next term is the nutrients. So dear students, पहले आपने देखा what is nutrition. Nutrition होता है it is a science of food where we have to study about the food and it is multidisciplinary science which is related with the various subjects. Then only you can solve the nutrition problems in a better way. जो न्यूट्रिशन है वहाँ पे आप फूड के बारे में पढ़ते हैं. फूड कैसा इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, कैसे जब हम इंजेस्ट करते हैं फिर क्या इनसाइड अवर बॉडी व्हाट हैपन टू द बॉडी, ये आप सारा स्टडी करते हैं न्यूट्रिशन में. देन यू स्टडी द व्हाट इज फूड. फूड जो है दैट गिव्स अस एनर्जी, जो हमें एनर्जी देता है. whatever you eat, either you in the form of solid or liquid, any substance you take in solid or liquid form, that is food. And food जो है it gives us energy which is need for performing the day to day activities. So food and nutrition is different. फूड जो है ये एक लिमिटेड एरिया है बट द न्यूट्रिशन जो है ये एक वाइड एरिया है जो मल्टी डिसिप्लिनरी है. मल्टी डिसिप्लिनरी हम न्यूट्रिशन को इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड विद अदर फील्ड ऑफ साइंस. Hope you got me point. Then we study the what is health. So health जो है आप उसको कह सकते हैं the person is healthy when he is fit in all domains, physical, mental and social. Then only you can say the person is healthy or label them as healthy. And you only achieve the healthy goal by taking proper balanced diet or adequate food. Hope you got my point. Now the next term in the food science and nutrition is nutrients. So what are nutrients? The food we eat contains many chemical substances that are called as
न्यूट्रिएंट्स। सो जो फूड आप कंज्यूम करते हैं उसमें जो केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। They are invisible compounds in the food which are necessary for keeping the body healthy. They are the constituents present in food that must be supplied to the body in suitable amounts. जो न्यूट्रिएंट्स है, these are the chemical substances जो हमारी फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे बॉडी को फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, जो हमारे बॉडी में बहुत सारी फंक्शन रोल करते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, उनको आप न्यूट्रिएंट्स कर सकते हैं। इधर यू कैन से द फूड वी ईट कंटेन्स एनी केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और अनदर डेफिनेशन न्यूट्रिएंट्स these are invisible compounds, we can't see the nutrients in the food but we can see their functions when they are playing inside our body. And or you can say nutrients, these are the constituents that are present in the food that must be supplied to the body in suitable amounts, because जो nutrients है ये आपको बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में मिलना चाहिए, ना ये आपको एक्सेस में लेना है, नॉट इन द deficient form. For example, if you take nutrients in excess form, problem will if you take nutrients from in deficient form, either in very low form, so deficiency of nutrient may happen to an individual. That is why we have to take this nutrient in suitable amount. Hope you know now what is nutrition, what is food, what is health, and what are nutrients. Now the next term is the nutritional status. ये टर्म्स आपको थ्रू आउट द सब्जेक्ट मिल जाएंगी, दैट इज वाई पहले आपको पता होनी चाहिए कि ये टर्म्स क्या है, ठीक है। सो न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशनल स्टेटस इज अनदर टर्म, इट इज अ स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज अफेक्टेड बाय इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है ये एक इंडिविजुअल को हम एसेस करते हैं उसके हेल्थ को जो इफेक्ट हो गया होता है उसने क्या लिया है, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इट मींस कि जब आप एक इंडिविजुअल का असेसमेंट करते हैं, न्यूट्रिशन असेसमेंट करते हैं, तो न्यूट्रिशन असेसमेंट जब हम करते हैं उसमें बहुत सारे मेथड्स है, जैसे उसमें हम वेट, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, बायोकेमिकल टेस्ट हम करते हैं, उसको हम एग्जामिनेशन करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन या डाइटरी असेसमेंट, हम उससे पूछते हैं कि आपने क्या खाया, कब खाया, वो कैसे बना था, कितना खाया। तो उसको हम एनालाइज करते हैं, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को देखते हैं, उसकी हेल्थ हिस्ट्री को देखते हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो न्यूट्रिशनली एसेस उसको हम करते हैं कि वो न्यूट्रिशनली फिट, इज दैट इंडिविजुअल न्यूट्रिशनली फिट और नॉट, दैट इज न्यूट्रिशनल स्टेटस। It refers to the degree of balance between nutrient intake and nutrient requirement which is affected by physiological, psychological, cultural and economic factors. मीन्स कि जो भी हम फूड या न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनकी रिक्वायरमेंट, हमारी जो बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है ये वेरी होती है एज पर द एज, एज पर द सेक्स एंड एज पर द ऑक्यूपेशन। जो हमारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स होती है ये वेरी होती है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, isn't, as per the age, as per the sex and as per the occupation. So आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स कितनी है, क्या आप उस गोल को फुलफिल करते हैं बाय टेकिंग द प्रॉपर डाइट। सो जो हम डाइट लेते हैं वो किससे इफेक्ट होता है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, कल्चर को, ये चार फैक्टर्स से हमारा डाइट वेरी होता है, ठीक है। सो उसको आप न्यूट्रिशनल स्टेटस करते हैं। It assesses the severity and magnitude of nutritional problems due to faulty dietary intake and utilization of nutrients. जो nutritional status होता है, आप ये भी कह सकते हैं कि हम nutritional status होता है जहाँ पे हम nutritional problems को assess करते हैं, उनकी severity हम analyze करते हैं। So वो disease कैसे होती है, वो severity कैसे होती है, आप कैसा लेते हैं फूड, आपका जो डाइटरी हैबिट्स है वो कैसा है, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में कैसा है।
ये जो faulty dietary habits and utilization of nutrients, these two factors affect on your body. ठीक है. सो अब जब आप एसेस एनालाइज करते हैं सीवियरिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस. और another definition of the nutritional status is it determines what, where, when, who and why. मीन्स कि आपने क्या खाया, क्या क्या खाया. ठीक है, वो आप इसमें एसेस करते हैं. वेयर, कहाँ खाया, घर पे खाया, बाहर खाया. इट बिकॉज सोशलाइजेशन इफेक्ट when, कब खाया, टाइमिंग क्या थी. प्रॉपर टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ फॉर कंजप्शन ऑफ मील. हु, किसके साथ खाया. ठीक है, या किसने बनाया फूड, कैसे बना था. वाई, और क्यों खाया. अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल ने जिसका आप न्यूट्रिशनल स्टेटस करते हैं, असेस करते हैं, आप उसको पूछते हैं आपने क्या क्या फूड खाया. ठीक है, कब खाया, किसके साथ खाया, कितना खाया, पोर्शन कितना था, किसने बना था, कैसे बना था. वाई, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि उसने कुछ फॉल्टी डाइट लिया, तो आप उसको रीजन पूछते हैं आपने ये वाला फूड क्यों खाया. वो कहता है मैं ये नहीं लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉमन कोल्ड था तो मैं टमाटर नहीं मैंने कल खाए, मैं नहीं खाता. तो आप उसको रीजन पूछते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. ठीक है, या आई एम प्रेग्नेंट लेडी एंड आई एम नॉट टेकिंग द पपाया बिकॉज देयर इज अ मिथ दैट द प्रेग्नेंट लेडी कैन नॉट ईट पपाया. ठीक है, तो आप उसको पूछते हैं क्यों नहीं खाती हो, रीजन क्या है. तो वहां पे फॉल्टी नॉलेज है. हमें लोगों को अवेयर करना है. जब आप पॉपुलेशन को या आप किसी इंडिविजुअल को न्यूट्रिशनल असेस करते हैं, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस एनालाइज करते हैं, सो इफ यू फाइंड एनी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, so you have to solve that problem. But you can solve that problem only when you know all the factors. आप उस न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम को सॉल्व तब कर सकते हैं जब आपको सारे फैक्टर्स पता होंगे कि अगर ये फूड ये नहीं लेता है इसका रीजन क्या है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाट इज द रीजन अबाउट द फॉल्टी डाइटरी हैबिट. ठीक है, so then only you can assess the nutritional status of an individual or an community. so nutritional status होता है कि आप एनालाइज करते हो न्यूट्रिशन असेसमेंट को या उसके न्यूट्रिशन हेल्थ को. देखते हैं कि इसमें कोई न्यूट्रिशन प्रॉब्लम तो नहीं है. अगर है सीवियरिटी कितनी है जो ये फूड यूटिलाइज करते हैं, वो कैसे ये करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, उसको आप एसेस करते हो. उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होती है इनसाइड आवर बॉडी, उसको आप कहते हैं न्यूट्रिशनल स्टेट. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द malnutrition. Malnutrition, it is an impairment of health resulting from deficiency, excess or imbalance of nutrients in your diet. So malnutrition होता है either you take the nutrients in very low form or in excess, or there is imbalance between consumption and expenditure. ठीक है, that is malnutrition. Or it includes both undernutrition, overnutrition or excessive consumption. So malnutrition आप कहते हैं, malnutrition होता है जब आप डाइट जो है या न्यूट्रिएंट्स है या तो आप वो बहुत कम लेते हैं. ठीक है, some nutrient one or two nutrients are deficient in your diet, या आप कोई न्यूट्रिएंट एक्सेस में लेते हैं या बैलेंस ही नहीं करते, जितना आप खाते उतना कंज्यूम ही नहीं होता है. ठीक है, सो जब जितना आप खाते, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 kg 100 किलो कैलोरीज आपने कंज्यूम की, बट ये जो 100 किलो कैलोरीज है आपने 50 ही फिर एक्सपेंडिचर की. जो 50 जो है वो आपकी बॉडी में स्टोर रह गई. सो जब 50 स्टोर रह गई जिसकी वजह से फिर ओबेसिटी होती है, ओवरवेट हो जाता है या अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होती है. सो वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर. जितना आप खाते हैं उतना आप उसको एक्सपेंड करो, देन यू मेंटेन योर हेल्थ. अदरवाइज जो मैल न्यूट्रिशन होता है या तो आप न्यूट्रिएंट्स एक्सेस या एब्सेस में लेते हैं, या आप बैलेंस इम्बैलेंस होती है बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन. सो उस पर्सन को हम मैल न्यूट्रिशन कहते हैं. जो मैल न्यूट्रिशन होता है उसमें अंडर न्यूट्रिशन आता है, ओवर न्यूट्रिशन. अंडर न्यूट्रिशन होता है वियर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट, जिसकी वजह से अंडरवेट होता है उस इंडिविजुअल को. फॉर एग्जांपल
अगर एक इंडिविजुअल लेता है, वो डाइट जो लेता है उसमें कैलोरीज कम होंगी या उसमें प्रोटीन कम होगा, तो उसका जो वेट है वो दिन ब दिन डिक्रीज हो जाता है, तो वो अंडर वेट होता है, उसको हम कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन। इट मीन्स कि अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है, इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी फुलफिल नहीं हो जाती है। And the overnutrition, it is the excess of calories or one or more nutrients in your diet. Overnutrition होता है जहाँ पे आपके डाइट में कैलोरीज या ज्यादा होंगी या और कोई न्यूट्रिएंट आपके डाइट में ज्यादा होगा, उसको हम कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन। जिससे क्या होता है, विच लीड्स टू ओवरवेट और ओबेसिटी। और अगर आपके डाइट में फैट सॉल्युबल विटामिन एक्सेस में होंगे, जिसकी वजह से उनसे टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, दैट लास्ट टर्म is the diet. It means the kind and amount of food and beverages consumed per day. It may be normal or modified. Diet होता है कि amount of food, कितना आप food लेते हैं, either in the form of solid या beverages of full day का जो मेन्यू होता है उसको हम डाइट कहते हैं। जो ये डाइट होता है या आप नॉर्मल कह सकते हैं और मॉडिफाइड। मॉडिफाइड हम तब लेते हैं जब इंडिविजुअल सफर होता है फ्रॉम सम हेल्थ प्रॉब्लम, so at that time you modify their diet. ठीक है, that is modified diet. And what is kilocalorie? It is the unit measuring the energy value of food or energy needs of the body. It is the amount of heat required to raise the temperature of 1000 gram of water by 1 degree Celsius. जो किलो कैलोरी है ये यूनिट है, मेजरिंग यूनिट है एनर्जी का। मीन्स कि जब आप कैलोरीज को आप मेजर करते हैं, फूड की कैलोरीज को मेजर करते हैं, उसको आप मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ किलो कैलोरीज। एंड एक किलो कैलोरी में 4.184 किलो जूल्स है। ठीक है, so either you can measure the energy of the food in the form of kilocalorie or in the form of kilojoule. So 1 kilocalorie is equal to the 4.184, isn't it? So these are the terms that are very important in the food science and nutrition. So first you have to know all these terms, then only you can learn the subject in a better way. Thank you. Assalamu alaikum, dear students. Here I am Tahira teaching you food science and nutrition. Under this subject, the first chapter is basic concepts in food and nutrition. And the subtopics of this chapter are basic terms used in study of food and nutrition. Next is relationship between food, nutrition and health. And the next subheading is functions of food. So today we discuss basic terms, various terms or basic terms that are used in study of food and nutrition. So first of all, we study what is nutrition. Nutrition defined as food at work in the body. It is the science of food, nutrients or other substances, therein, their action, interaction and balance in relationship to health and disease. It is a process by which organisms ingests, digests, absorbs, transport and utilizes nutrients and dispose of their end products. Nutrition as science. It tells us about what happens to the food when it enters our body and thereafter. See, this nutrition ये एक फील्ड है जो हम स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वो हम कैसे सॉल्व करते हैं? वी हैव टू स्टडी अबाउट द फूड। अंडर दिस न्यूट्रिशन इट इज अ फील्ड ऑफ साइंस where we study about the food. It means कि जो न्यूट्रिशन है यहाँ पे आप फूड के बारे में स्टडी करते हैं, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं और अदर सब्सटेंसेस जो फूड में प्रेजेंट होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या एक्ट करते हैं, उनका क्या इंटरेक्शन रहता है हमारी बॉडी के साथ और वो कैसे हमारे बॉडी में मेंटेन करते हैं बैलेंस बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज। इट मीन्स कि जब आप कोई फूड लेते हैं, जब किसी पर्सन को कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होती है, सो
जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होती है उसमें हम कुछ न्यूट्रिएंट्स या एनहांस करते हैं या कुछ न्यूट्रिएंट्स हम उसमें ओमिट करते हैं एज पर द हेल्थ कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल। सो फूड जो है ये हमारे बॉडी में पहले हम इंजेस्ट करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा जो फूड है हम इंजेस्ट करते हैं, फिर ये डाइजेस्ट हो जाता है, आफ्टर डाइजेस्ट की एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, फिर मेटाबोलाइज हो जाती है। इट मीन्स कि जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिस्पोज हो जाते हैं। सो ये जो ये ऑल प्रोसेस है फ्रॉम इंजेक्शन टू द डिस्पोज ऑफ एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, जो भी इस बिटवीन जो ये साइकिल है, इस प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं अंडर द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन। इट मीन्स जो न्यूट्रिशन है ये एक वाइड फील्ड है जहाँ पे आप स्टडी करते हो कि एक फूड के बारे में, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, उससे हमारे क्या बेनिफिट्स है हमारे हेल्थ के लिए, क्या फंक्शन हमारी बॉडी में ये प्ले रोल करता है, इसका क्या एक्शन रहता है हमारे हेल्थ पे। और जब एक इंडिविजुअल सफर करता है किसी डिजीज से, तो उसका इंटरेक्शन एट दैट टाइम, व्हाट इज द इंटरेक्शन ऑफ द फूड विद द disease. And this nutrition, another definition of the nutrition is it tells us about what happens to the food when it enters our body and thereafter. So this definition also defines the same thing. It means that the food when it enters inside our body, what happens. सो ये जो ये सारा प्रोसेस है जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं फिर अंदर इनसाइड द बॉडी व्हाट हैपेंस टू द फूड, ये सारा आप स्टडी करते हैं इस न्यूट्रिशन में, isn't it? So nutrition जो है ये एक multidisciplinary है. It is correlated with other subjects. जब आप पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में, so it means कि जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप पढ़ते हैं वहाँ पे केमिस्ट्री आ जाती है, उनका एक्शन, वो हम केमिस्ट्री में रिएक्शन जैसे हम देखते हैं। सो आपको केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, then only you can understand the nutrition subject in a better way. Now the next term is the food. What is food? Anything solid or liquid which when swallowed, digested and assimilated in the body, that is food. So food जो है ये कुछ भी, either you eat solid or liquid or which is swallowed and digested and assimilated, means absorbed and transported inside our body, that is food. Food, another definition, it satisfies our hunger and provides us energy for day-to-day living. It means जो food है, it gives us energy which is need for performing day-to-day activities. This is the another term. First was the nutrition, next was the food. So nutrition is different term and the food it is different. Now the next term is the health. Good health is important for great experience of living. Health affects not only individual but also community in which we live. In order to maintain the health, adequate food is very important. Then only you can achieve the good health goal. And the proper definition of health is it is a state of complete physical, mental, social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. So health, health क्या होता है? हेल्थ जो है इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। ये प्रॉपर डेफिनेशन है जो WHO ने दी है हमारे रिगार्डिंग हेल्थ। हेल्थ आप उसको इंसान को आप लेबल कर सकते हैं जो फिजिकली मेंटली एंड सोशली फिट होगा। जब ये तीनों डोमेन्स में व्हेन द इंडिविजुअल इज फिट इन ऑल थ्री डोमेन्स, then you can say the person is healthy. And in order to achieve the healthy goal, you have to take adequate diet या adequate food. तो जब आप proper balanced diet जिसमें सारे nutrients present होंगे, essential nutrients like carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, that is balanced diet. When you take the adequate food or balanced diet, then only you can achieve the good health goal.
ठीक है. When a person is healthy, इट मीन्स कि होल कम्युनिटी इज हेल्दी. जब एक इंडिविजुअल बीमार होता है, हेल्दी नहीं होता है, ये इफेक्ट करता है पूरे एरिया या पूरे कम्युनिटी को. होप सो इजंट that healthy, it affects not only individual but also community in which we live. Hope you got my point. Now the next term is the nutrients. So dear students, पहले आपने देखा what is nutrition. Nutrition होता है, it is a science of food, where we have to study about the food, and it is multidisciplinary science which is related with the various subjects. Then only you can solve the nutrition problems in a better way. जो न्यूट्रिशन है वहां पे आप फूड के बारे में पढ़ते हैं, फूड कैसा, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, कैसे जब हम इंजेस्ट करते हैं फिर क्या इनसाइड आवर बॉडी, व्हाट हैपन टू द बॉडी, ये आप सारा स्टडी करते हैं न्यूट्रिशन में. देन यू स्टडी द व्हाट इज फूड. फूड जो है दैट गिव्स अस एनर्जी, जो हमें एनर्जी देता है. Whatever you eat, either you in the form of solid or liquid, any substance you take in solid or liquid form, that is food. And food जो है it gives us energy which is need for performing the day to day activities. So food and nutrition is different. फूड जो है ये एक लिमिटेड एरिया है, बट द न्यूट्रिशन जो है ये एक वाइड एरिया है जो मल्टी डिसिप्लिनरी है. मल्टी डिसिप्लिनरी हम न्यूट्रिशन को इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड विद अदर फील्ड ऑफ साइंस. Hope you got me point. Then we study the what is health. So health जो है आप उसको कह सकते हैं, the person is healthy when he is fit in all domains, physical, mental and social. Then only you can say the person is healthy or label them as healthy. And you only achieve the healthy goal by taking proper balanced diet or adequate food. Hope you got my point. Now the next term in the food science and nutrition is nutrients. So what are nutrients? The food we eat contains many chemical substances that are called as nutrients. So जो food आप consume करते हैं उसमें जो chemical substances present होते हैं उनको हम nutrients कहते हैं. They are invisible compounds in the food which are necessary for keeping the body healthy. They are the constituents present in food that must be supplied to the body in suitable amounts. जो nutrients है, these are the chemical substances जो हमारी food में present होते हैं, जो हमारे body को फंक्शन इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, जो हमारे बॉडी में बहुत सारी फंक्शंस रोल करते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, उनको आप न्यूट्रिएंट्स कर सकते हैं. इधर यू कैन से द फूड वी ईट कंटेन्स एनी केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. और अनदर डेफिनेशन, न्यूट्रिएंट्स these are invisible compounds. We can't see the nutrients in the food, but we can see their functions when they are playing inside our body. And or you can say nutrients, these are the constituents that are present in the food that must be supplied to the body in suitable amounts. Because जो nutrients है ये आपको body को प्रॉपर अमाउंट में मिलना चाहिए, ना ये आपको एक्सेस में लेना है, नॉट इन द deficient form. For example, if you take nutrients in excess form, problem will, if you take nutrients from in deficient form, either in very low form, so deficiency of nutrient may happen to an individual. That is why we have to take this nutrient in suitable amount. Hope you know now what is nutrition, what is food, what is health, and what are nutrients. Now the next term is the nutritional status. ये टर्म्स आपको थ्रू आउट द सब्जेक्ट मिल जाएंगी. दैट इज वाई पहले आपको पता होनी चाहिए कि ये टर्म्स क्या है. ठीक है.
सो न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है? व्हाट इज न्यूट्रिशनल स्टेटस? इज अनदर टर्म. It is a state of health of an individual which is affected by intake and utilization of nutrients. जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है ये एक इंडिविजुअल को हम एसेस करते हैं उसके हेल्थ को जो इफेक्ट हो गया होता है उसने क्या लिया है एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इट मींस कि जब आप एक इंडिविजुअल का असेसमेंट करते हैं न्यूट्रिशन असेसमेंट करते हैं तो न्यूट्रिशन असेसमेंट जब हम करते हैं उसमें बहुत सारे मेथड्स है जैसे उसमें हम वेट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स बायोकेमिकल टेस्ट हम करते हैं उसको हम एग्जामिनेशन करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन या डाइटरी असेसमेंट हम उससे पूछते हैं कि आपने क्या खाया कब खाया वो कैसे बना था कितना खाया. तो उसको हम एनालाइज करते हैं उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को देखते हैं उसकी हेल्थ हिस्ट्री को देखते हैं उससे हमें पता चलता है कि वो न्यूट्रिशनली एसेस उसको हम करते हैं कि वो न्यूट्रिशनली फिट इज दैट इंडिविजुअल न्यूट्रिशनली फिट और नॉट. दैट इज न्यूट्रिशनल स्टेटस. It refers to the degree of balance between nutrient intake and nutrient requirement which is affected by physiological, psychological, cultural and economic factors. मीन्स कि जो भी हम फूड या न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनकी रिक्वायरमेंट हमारी जो बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है ये वेरी होती है एज पर द एज एज पर द सेक्स एंड एज पर द ऑक्यूपेशन. जो हमारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स होती है ये वेरी होती है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल isn't as per the age as per the sex and as per the occupation. So आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स कितनी है क्या आप उस गोल को फुलफिल करते हैं बाय टेकिंग द प्रॉपर डाइट. सो जो हम डाइट लेते हैं वो किससे इफेक्ट होता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कल्चर को ये चार फैक्टर्स से हमारा डाइट वेरी होता है. ठीक है. सो उसको आप न्यूट्रिशनल स्टेटस करते हैं. It assesses the severity and magnitude of nutritional problems due to faulty dietary intake and utilization of nutrients. जो nutritional status होता है आप ये भी कह सकते हैं कि हम nutritional status होता है जहाँ पे हम nutrition problems को assess करते हैं उनकी severity हम analyze करते हैं. So वो disease कैसे होती है वो severity कैसे होती है आप कैसा लेते हैं फूड आपका जो डाइटरी हैबिट्स है वो कैसा है एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में कैसा है. ये जो फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स दीज टू फैक्टर्स इफेक्ट ऑन योर बॉडी. ठीक है. सो अब जब आप एसेस एनालाइज करते हैं सीवियरिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन स्टेटस. और another definition of the nutritional status is it determines what where when who and why. मीन्स कि आपने क्या खाया क्या क्या खाया. ठीक है. वो आप इसमें एसेस करते हैं वेयर कहाँ खाया घर पे खाया बाहर खाया. इट बिकॉज सोशलाइजेशन इफेक्ट when कब खाया टाइमिंग क्या थी प्रॉपर टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कंजप्शन ऑफ मील. हु किसके साथ खाया. ठीक है. या किसने बनाया फूड कैसे बना था वाई और क्यों खाया. अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल ने जिसका आप न्यूट्रिशनल स्टेटस करते हैं असेस करते हैं आप उसको पूछते हैं आपने क्या क्या फूड खाया. ठीक है. कब खाया किसके साथ खाया कितना खाया पोर्शन कितना था किसने बना था कैसे बना था वाई. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि उसने कुछ फॉल्टी डाइट लिया तो आप उसको रीजन पूछते हैं आपने ये वाला फूड क्यों खाया वो कहता मैं ये नहीं लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉमन कोल्ड था तो मैं टमाटर नहीं मैंने कल खाए मैं नहीं खाता. तो आप उसको रीजन पूछते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. ठीक है. या आई एम प्रेग्नेंट लेडी एंड आई एम नॉट टेकिंग द पपाया बिकॉज देयर इज अ मिथ दैट द प्रेग्नेंट लेडी कैन नॉट ईट पपाया. ठीक है. तो आप उसको पूछते हैं क्यों नहीं खाती हो रीजन क्या है. तो वहां पे फॉल्टी नॉलेज है हमें लोगों को अवेयर करना है जब आप पॉपुलेशन को या आप किसी इंडिविजुअल को न्यूट्रिशनल असेस करते हैं उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस एनालाइज करते हैं. सो इफ यू फाइंड एनी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम so you have to solve that problem but you can solve that problem only when you know all the factors. आप उस न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम को सॉल्व तब कर सकते हैं जब आपको सारे फैक्टर्स पता होंगी कि अगर ये फूड ये नहीं लेता है इसका रीजन क्या है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस व्हाट इज द रीजन अबाउट द फॉल्टी डाइटरी हैबिट. ठीक है.
So then only you can assess the nutritional status of an individual or an community. So nutritional status होता है कि आप एनालाइज करते हो न्यूट्रिशन असेसमेंट को या उसके न्यूट्रिशन हेल्थ को, देखते हैं कि इसमें कोई न्यूट्रिशन प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है सीवियरिटी कितनी है, जो ये फूड यूटिलाइज करते हैं वो कैसे ये करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, उसको आप एसेस करते हो, उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होती है इनसाइड आवर बॉडी, उसको आप कहते हैं न्यूट्रिशनल स्टेट. नाउ द नेक्स्ट टर्म is the malnutrition. Malnutrition, it is an impairment of health resulting from deficiency, excess or imbalance of nutrients in your diet. So malnutrition होता है either you take the nutrients in very low form or in excess, or there is imbalance between consumption and expenditure. ठीक है, that is malnutrition. Or it includes both undernutrition, overnutrition or excessive consumption. So malnutrition आप कहते हैं, malnutrition होते हैं जब आप डाइट जो है या न्यूट्रिएंट्स है या तो आप वो बहुत कम लेते हैं, ठीक है, सम न्यूट्रिएंट वन और टू न्यूट्रिएंट्स आर डेफिशिएंट इन योर डाइट, या आप कोई न्यूट्रिएंट एक्सेस में लेते हैं या बैलेंस ही नहीं करते, जितना आप खाते उतना कंज्यूम ही नहीं होता है, ठीक है. सो जब जितना आप खाते, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 kg 100 किलो कैलोरीज आपने कंज्यूम की, बट ये जो 100 किलो कैलोरीज है आपने 50 ही फिर एक्सपेंडिचर की, जो 50 जो है वो आपकी बॉडी में स्टोर रह गई. सो जब 50 स्टोर रह गई जिसकी वजह से फिर ओबेसिटी होती है, ओवरवेट हो जाता है या अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होती है. सो वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर. जितना आप खाते हैं उतना आप उसको एक्सपेंड करो, देन यू मेंटेन योर हेल्थ. अदरवाइज जो मैल न्यूट्रिशन होता है या तो आप न्यूट्रिएंट्स एक्सेस या एब्सेस में लेते हैं, या आप बैलेंस इम्बैलेंस होती है बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन. सो उस पर्सन को हम मैल न्यूट्रिशन कहते हैं. जो मैल न्यूट्रिशन होता है उसमें अंडर न्यूट्रिशन आता है, ओवर न्यूट्रिशन. अंडर न्यूट्रिशन होता है वियर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट, जिसकी वजह से अंडरवेट होता है उस इंडिविजुअल को. फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल लेता है, वो डाइट जो लेता है उसमें कैलोरीज कम होंगी या उसमें प्रोटीन कम होगा, तो उसका जो वेट है वो दिन ब दिन डिक्रीज हो जाता है, तो वो अंडरवेट होता है, उसको हम कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन. इट मीन्स कि अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है, इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी फुलफिल नहीं हो जाती है. And the overnutrition, it is the excess of calories or one or more nutrients in your diet. Overnutrition होता है जहाँ पे आपके डाइट में कैलोरीज या ज्यादा होंगी या और कोई न्यूट्रिएंट आपके डाइट में ज्यादा होगा, उसको हम कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन. जिससे क्या होता है, विच लीड्स टू ओवरवेट और ओबेसिटी. और अगर आपके डाइट में फैट सॉल्युबल विटामिन एक्सेस में होंगे जिसकी वजह से उनसे टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है. दैट लास्ट टर्म is the diet. It means the kind and amount of food and beverages consumed per day. It may be normal or modified. Diet होता है कि amount of food, कितना आप food लेते हैं either in the form of solid या beverages of full day का जो मेन्यू होता है उसको हम डाइट कहते हैं. जो ये डाइट होता है या आप नॉर्मल कह सकते हैं और मॉडिफाइड हम तब लेते हैं जब इंडिविजुअल सफर होता है फ्रॉम सम हेल्थ प्रॉब्लम. So at that time you modify their diet. ठीक है, that is modified diet. And what is kilocalorie? It is the unit measuring the energy value of food or energy needs of the body. It is the amount of heat required to raise the temperature of 1000 gram of water by 1 degree Celsius. जो किलो कैलोरी है ये यूनिट है, मेजरिंग यूनिट है एनर्जी का. मीन्स कि जब आप कैलोरीज को आप मेजर करते हैं, फूड की कैलोरीज को मेजर करते हैं, उसको आप मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ किलो कैलोरीज. एंड एक किलो कैलोरी में 4.184 किलो जूल्स है. ठीक है. So either you can measure the energy of the food in the form of kilocalorie or in the form of kilojoule. So 1 kilocalorie is equal to the 4.184, isn't it? So these are the terms that are very important in the food science and nutrition. So first
You have to know all these terms, then only you can learn the subject in a better way. Thank you.